everyone, and welcome to the Dharya Decodes YouTube channel. And we are going to get into a very exciting conversation today. आपको ये बात पता नहीं होगी, शायद कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगी, बट मैंने अपने इंजीनियरिंग ईयर्स में 4 साल में करीबन 25 प्लस इंटर्नशिप्स की थी. जी हाँ, नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और शो ऑफ, बट थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो करती हूँ मैं इस बारे में. But today's video, on a serious note, is to help you guys also understand that how did I actually do 25 plus internships and how was it possible to do it in that 4-year period. Second year में शुरुआत की थी मैंने internships करने की, and by the time I graduated, in those 2 years मैंने 25 plus internship की थी. Again, the purpose of this video is not to concentrate on the number, but it is actually to tell you कि कैसे अगर आप एक systematic process follow करोगे, then it is completely possible to do internships without any experience while in college. Because एक चीज़ जो मुझे सारे students LinkedIn पे, Instagram पे, YouTube पे तक पूछते हैं is कि यार हम fresher हैं, हम second year में, हम first year में, मुझे internship कौन देगा? आपको सबको internship हर इंसान देगा. You have to just follow this process and you have to show that intent. So without any further ado, let's get started with the video. I'm going to be giving you a 5-step process to be able to land internships while studying in college. And by the way, all the internships that I had done were paid. So you can also try and land paid internships. But I am actually going to advocate for landing internships in general. Paid or unpaid, that's ultimately your choice. I feel that the first few internships that you do, 1 or 2, can be unpaid to gain experience. But after those first 1 or 2 experiences, you should get so good at that one skill that then you never ever do anything unpaid in that one field, right? So that is my opinion, but yes, let's get started. Step number 1, which is to have a clear vision and know your why, right? Having a clear vision and knowing your why is very important when you are on the internship hunt. As a student, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे इंटर्नशिप क्यों करनी है. 2 रीजन थे. नंबर 1, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी सेव अप करनी थी ताकि ज़्यादा पैसे ना मांगने पड़े फ्रॉम मॉम एंड डैड बिकॉज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रीजंस बैक देन. सेकेंड थिंग वाज कि आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मुझे मैनेजमेंट फील्ड के अंदर कौन से डोमेन में एक्चुअल में फुल टाइम पाथ अपना करियर या प्रोफेशन फॉलो करना है. आई हैड नो क्लू. मैनेजमेंट इज अ वास्ट फील्ड. अब आप मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो एंड व्हाट नॉट. मुझे ये जाना था इन सब में से मैं क्या करूँगी. तो मुझे यही आया थॉट कि यार अब और कुछ सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज मुझे तब क्लिक नहीं किया. थॉट प्रैक्टिकल वर्क करती हूँ, लेट मी डू इंटर्नशिप्स इन डिफरेंट फील्ड्स, देन फिगर आउट कर लूंगी इन 2 years कि किस फील्ड में जॉब लेनी है. सो ये 2 रीजंस मेरे क्लियर थे. आपका वाई कुछ भी हो सकता है. आपका वाई ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. टू फिगर आउट योर इंटरेस्ट आप इंटर्नशिप कर रहे हो, राइट, व्हिच इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ माइन, बट दैट इज आल्सो ओके. आपका भाई ये भी हो सकता है, like I said, that you want to earn some extra bucks and probably purchase something you've always wanted to and you don't want to take money from your parents. Your why to do internships can be you want to actually add it on your resume to be able to land better jobs or anything else. But your vision to do an internship and your why should be clear. Then your step 1 is sorted. Moving on to step number 2, which is having a clear idea of the domain and the kind of companies that you want to apply to for internships. अब इसका क्या मतलब है. जब आप ये ठान लेते हो कि यार इंटर्नशिप करनी है कॉलेज में, दैट्स ग्रेट, और आपको किस तरीके की कंपनीज में, किस डोमेन में इंटर्नशिप करनी है, सम क्लैरिटी इज नीडेड. लेट्स से इवन इफ आई कंसिडर यू एज अ एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड पर्सन, आपको नहीं पता है आपको किस डोमेन में इंटर्नशिप करनी है, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है. Even then, you should have at least some idea that what are some major strengths of yours, which could be things you enjoy doing or you're good at, so that they can help you navigate through things and then आप उसके around कुछ internships ढूंढ सको. For example, अगर आपको पता है you really like talking to people, you really like being around people, then obviously बात है कुछ creative client facing type of roles लोगे तो ये better रहेगा. Something behind the laptop, behind the scenes is not your kind of jam, right? Because you are a person who likes being around people, you like working in teams, you like a collaborative environment. So at least ये basic चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए. या अगर आपको पता है कि यार वेब डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है, UI UX में भी इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में भी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको इतना तो पता है इन तीनों में है. अब इन तीनों में इंटर्नशिप्स कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है. Nobody has put a bar on the number of internships you can do in college and in which domains you can. Use this time to explore your strengths, to explore what you like and what you don't like. जब आप इन तीनों डोमेन्स में इंटर्नशिप्स कर लोगे, by the end of the internships you will have a very good idea
that what do I actually like doing in real time. Okay, because it's very easy to say the job of, let's say a pilot is amazing, it looks so fancy, or the job of, let's say, a food taster is so fancy, but doing it is a different ball game altogether. Practically उस फील्ड में अपने आपको झुकना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि you actually stand the test of time, right? So that's practically what you need to do. That's why I have some idea of the kinds of companies or startups or agencies you want to apply to for internships. At least 5 या 10 companies के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए that I see myself working here. Or these are the companies I aspire or admire to get into. And similarly, at least 3-4 domains clear होनी चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही you have to narrow down on one at all, but at least 3-4 की list होनी चाहिए for domains and companies both. Moving on to step number 3 that helped me land over 25 plus internships, which is building an effective and industry relevant resume and my internship applications. Now, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, आप इंटर्नशिप के लिए भले ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हो, whether it's AngelList, LinkedIn, Let's Intern, Internshala or any other platform, you have to go through an internship application process. And one of the most basic things जब आप एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो है आपका रेज्यूमे अपलोड करना. अब पहले मेरा रेज्यूमे होता था 7 पेजेस का, एंड दैट इज अ कंप्लीट नो. ये कभी मत करना. इट यूज्ड टू हैव सर्टिफिकेट्स अटैच्ड एंड व्हाट नॉट. उस पे मैं किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी एंड आई ट्राई टू फाइंड दैट रेज्यूमे एंड एक्चुअली शो इट टू यू ऑल्सो कि कैसे फर्स्ट ईयर में मेरा रेज्यूमे दिखता था एंड 4th ईयर तक मैंने उसको कैसे 7 पेजेस से 1 पेज में कन्वर्ट किया था. उस पर दूसरी वीडियो बनेगी. But the point is कि आपका resume is the first thing that any company would want to look into even when you're applying as an intern. Make sure कि आपका resume crisp है, concise है, it reflects those skills जो company ढूंढ रही है. अगर आप एक business development intern role के लिए apply कर रहे हो, it is very important कि आप उनको किसी फॉर्म में दिखा सको कि आपने पहले नेगोशिएशन पिचिंग की हुई है, आपको लोगों को कन्विंस करना आता है, राइट? आपको सेल्स करनी आती है, यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, यू आर गुड विद टॉकिंग टू पीपल. बिकॉज अगर ये बेसिक 5-6 स्किल्स नहीं है, देन यू कैन नॉट सर्वाइव इन सच एन इंटर्नशिप और प्रोफेशनली परसू इट एज अ करियर पाथ, राइट? तो ये आपके रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई यूज्ड टू मेक श्योर when I'm applying for a market research internship, मैं market research oriented पूरा customize करूँ अपना resume, कीवर्ड सही से डालूँ, ठीक से उसको पूरा फॉर्मेट करूँ as per the requirements of the company, JD ठीक से पढ़ना. जो जॉब डिस्क्रिप्शन या इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन होता है वो इंटर्नशिप्स के वेबसाइट पे जिन पे आप अप्लाई कर रहे हो उधर अवेलेबल होता है. रीड इट वेरी वेरी थॉरली, राइट? And I would do the same with the internship application process. Especially मुझे याद है कि जब मैं इंटर्नशाला पे अप्लाई करती थी, क्योंकि मोस्टली मेरी सारी इंटर्नशिप्स मुझे उधर से ही मिली थी, मुझे और कोई प्लेटफॉर्म्स तब पता नहीं थे इन माय सेकंड ईयर. तो जब मैं अप्लाई करती थी, they used to also ask me a couple of questions like, why do you want to join this company, या आपने इस डोमेन में प्रीवियसली इंटर्नशिप की है या नहीं, अगर की है तो आपने क्या किया था उस इंटर्नशिप में, हाउ डिड यू हेल्प द कंपनी, if you have a portfolio or a website or any documents to share with your previous work, please share it. ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे. इन क्वेश्चंस के पहले मैं हर इंटर्नशिप एप्लीकेशन में आंसर्स कॉपी पेस्ट कर देती थी. दैट डजंट वर्क. देन स्लोली एंड स्टडीली आई स्टार्टेड customizing it according to each company. That's when things work for me, right? पहले जहाँ पे 55 प्लस कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था फ्रॉम इंटर्नशिप्स, तब फिर मुझे वो रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस आया था, एंड आई गॉट माय फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस, राइट? सो आई हैव आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ फेलियर्स. इट वाज नॉट लाइक मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया एंड आई गॉट एन इंटर्नशिप, नो. बट द पॉइंट इज रेज्यूमे को और आपके इंटर्नशिप एप्लीकेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं and whatever they ask you has to be customized and well researched. You have to know what the company is looking for, what the role is all about and what they expect from you. तभी you can stand out from the pool of 1,000 plus people who are literally competing with you. मुझे याद है for every internship I used to apply to an internshala, minimum of 500 to even 5,000 applicants used to apply in one go. 3 दिन में 5,000 एप्लीकेशन आ जाते थे और उनमें से अल्टीमेटली वो 2 या 3 को सिलेक्ट करते थे फॉर दैट पेड इंटर्नशिप. Trust me, the competition was immense. So to stand out, customization has to be a part of things and your resume has to speak for itself. Moving on to step number 4 in this process, which is to prepare for interviews, right? You really need to pull your socks and not become complacent. If you have received an invitation to, go ahead and give your first round of interviews at a company, it's great. It should boost your confidence, but you shouldn't become overconfident. You have to be prepared. I would make sure that I did my company research well. I understood कि कंपनी का मिशन, विजन, गोल्स क्या हैं, कंपनी मेरे से क्या चाहती है, क्या जॉब रोल है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है चाहते हैं वो कि मुझे आती हूँ,
मैनेजरियल स्किल्स क्या चाहते हैं कि मैं possess करूँ। ओवर एंड अबव दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रैक्टिस करें। इवन इफ यू समबडी जो बहुत कॉन्फिडेंट है और यू समबडी जो नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यूज में, इन दोनों के लिए मैं कुछ अलग नहीं बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही चाहिए। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स इन माई लाइफ कि मैं एक प्रोफेशनल इंटरव्यू देने वाली थी, and I would say I was decently confident, but I didn't want to flow into that overconfident stage. इसलिए मैं मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करती थी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं एक्ट करती थी, इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। आई हैव टू कीप इन माइंड एंड नोट माय बॉडी लैंग्वेज, माय बॉडी पोस्चर, माय टोन, my eye contact, my hand gestures, all of it in a mirror. That really helped. At times, I would also practice a couple of interviews with my parents if I got time, but that was very rare. But these things really helped. I would always keep researching on, very current questions and recent questions that are being asked during internship and job interviews as well, so that I'm one step ahead and I know with what kind of a mindset does a recruiter enter into an internship or a job interview, right? I would make sure I was prepared with any kind of behavioral or situational questions जो मेरे से रिक्रूटर पूछ सकता था। कोई भी बिहेवियरल या सिचुएशनल क्वेश्चन, जैसे कि आप इस वक्त सेकेंड ईयर में हो, आपके इतने एक्सटेंसिव डिग्री जो आप कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, दैट टू इन सच अ कम्पिटिटिव कॉलेज जहाँ पे प्रोजेक्ट्स, क्विजेस, क्या नहीं चलता रहता है, प्लस यू आर अ पार्ट ऑफ सो मेनी क्लब्स एंड चैप्टर्स, बिकॉज एज एन इंटरव्यूअर आई वुड इमेजिन वो मेरे पर पूरी रिसर्च करके आए होंगे, तो ये सब बोलेंगे। तो इस सब के बीच में आप इंटर्नशिप के लिए टाइम कैसे निकालोगे, या हाउ विल यू इंश्योर दैट यू गिव योर बेस्ट 100% एंड द वर्क इन द इंटर्नशिप इज नॉट हैम्पर्ड, कि आप अच्छे से काम करोगे। ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते भी थे रिक्रूटर्स, और नहीं भी पूछते थे तो मैंने रिसर्च की थी कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो नहीं पूछेंगे, इसके लिए क्यों प्रिपेयर करना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड 100%। सो आई थिंक उस चीज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मेरे ऊपर फेंका जा सकता था ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। सो आई वॉज फेयरली वेरी काम, कंपोज्ड। मेरे आंसर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड होते थे, मैं सोच समझ के आंसर करती थी, मैं कभी हड़बड़ी में नहीं होती थी दैट यार क्वेश्चन पूछा नहीं कि हैव टू आंसर। सो दैट आल्सो रियली हेल्प्ड। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप व्हिच इज द फिफ्थ स्टेप इन दिस प्रोसेस, व्हिच इज शोइंग द क्यूरियोसिटी टू लर्न और डिस्प्लेइंग अ क्यूरियोसिटी टू लर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगता है, मैं जिस भी इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, एंड बाय द वे मैंने सिर्फ इंडियन कंपनीज में अप्लाई नहीं किया था, मैंने आउट ऑफ इंडिया की फॉरेन बेस्ड कंपनीज में भी अप्लाई किया था, ताकि मैं डिफरेंट टाइम जोन्स में मल्टीपल इंटर्नशिप्स के बीच में जगल कर सकूं। दैट इज ऑल्सो हाउ मैं 25 इंटर्नशिप कर पाई थी 2 साल में। तो मैं अबू धाबी बेस्ड कंपनीज, यूके बेस्ड स्टार्टअप्स, यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स में भी अप्लाई कर रही थी फॉर इंटर्नशिप्स। तो ओवरऑल मैंने ये समझा और सीखा कि हर जगह उनको पता था कि यार ये सिर्फ एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, और ये अप्लाई कर रही है मैनेजमेंट वाली इंटर्नशिप्स के लिए विदाउट एन MBA डिग्री। शी हैज नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर प्रैक्टिकली, बट फिर भी कॉन्फिडेंटली पेड इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रही है। बट दैट वाज नॉट द रीजन दैट दे सिलेक्टेड मी। मुझे एक चीज़ जो कॉमन इन सब के बीच में लगी, जब आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट, या मैं वापस उस टाइम के बारे में सोचती हूँ, वो ये है कि उन सारे इंटरव्यूज में या कॉन्वर्जेशन में मैंने एक चीज़ दिखाई थी, विच इज इंटेंट टू लर्न, क्यूरियोसिटी टू लर्न। आपको ये दर्शाना है कि आप सीखने के लिए तत्पर हो, आप तैयार हो, आपको सीखने की भूख है, चाह है, एंड यू डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। आप डरते नहीं हो कुछ नया सीखने से, कुछ नया करने से। यू आर रेडी टू टेक ऑन चैलेंजेस। दैट स्पिरिट या दैट एटीट्यूड मुझे लगता है मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। मेरे हर इंटरव्यू में वो दिखा था, बिकॉज लिटरली मेरे अंदर वो जज्बा था। आई जस्ट नीडेड अ प्लेटफॉर्म। आई वॉज सो डेस्परेट कि यार कोई तो मुझे एक मौका दे दे। मुझे पता है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तभी मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही हूँ। आप मुझे ये मत बोला आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम आपको इंटर्नशिप नहीं दे रहे, राइट? बहुत गुस्सा आता था। माई इंटेंशन वॉज, मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चैलेंज माई सेल्फ। आई विल फेल एट टाइम्स बट आई विल कीप गोइंग। मुझे सीखना है। एंड आई वॉज रियली पैशनेट एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे फिगर आउट करना था यार कि मैनेजमेंट में धैर्य कर क्या सकती है तू। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज शो दैट इन एन इंटरव्यू, एंड दैट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। मुझे याद है हर एक स्टार्टअप फाउंडर ने और रिक्रूटर ने अप्रिशिएट किया दैट यू आर वेरी इंथुजियास्टिक, यू आर वेरी मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव टू टेक ऑन चैलेंजेस। और वो बात उनको बहुत अच्छी लगी दैट यू आर विलिंग टू लर्न, यू आर क्यूरियस टू लर्न। एक और बात जो उन्होंने बोली, आपकी बातों में वो श्योरिटी भी दिखती है कि यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट टू से इट, बिकॉज बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो इन एन इंटरव्यू। सो इट वॉज नॉट लुकिंग फेक, इट रियली केम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आई वाज सेल्फ अश्योर्ड एंड ऑल्सो अश्योरिंग देम कि यार मैं कर लूंगी, राइट? तब उनको एक कॉन्फिडेंस आता था, यार इसको मौका दे दो, लेट्स गिव अ वन चांस। दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट चांस, एंड दैट वन चांस लेड टू 25 चांसेस।
तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस 5 स्टेप प्रोसेस को अपनी पर्सनैलिटी और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्वीक करके बदल के अप्लाई कर लिया, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इंटर्नशिप ढूंढने में और ये समझने में कि आपको इंटर्नशिप क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। एंड लैंडिंग एन इंटर्नशिप ड्यूरिंग कॉलेज एंड दैट टू पेड इंटर्नशिप्स विल डेफिनेटली, आई वुडंट से कि 100% एक ईजी हो जाएगा, बट एटलीस्ट 3 times ईजियर देन व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू हो जाएगा। बिकॉज आई हैव लिव्ड इट, मैंने ये प्रैक्टिकली किया है अपनी लाइफ में और मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ जो भी मैं आपको बता रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे जाके आप मेरी सारी 25+ जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। मैंने सब अपडेट किया हुआ है लिंक्डइन पे, कहाँ कहाँ मैंने काम किया, क्या काम किया, वो भी अपडेटेड है, ताकि आपको और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिले कि यार मैं बात क्या कर रही थी जब मैं बोल रही थी मैंने 25 इंटर्नशिप किए हैं। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द धैर्य डिकोड्स चैनल. I will keep coming back with more such informational videos. Thank you so much.